I think you are ready for today's speaking session. And Simran, beta, wash your mouth, have a glass of water, tell your mama to make a cup of tea so that you can be properly with us. Aaja beta. So very good. I have got some names, and tomorrow you will have a class at 5. And if there would be any change, I will inform you before time. Okay. So I think you are ready, and please, I have got 2 names. Informally बोलो आपको जो बोलना है actual position. ठीक है ना? Okay. So first of all, I am calling Harshit. Come on, Harshit. Yes, sir. Hello, everyone. My name is Harshit Moore, and today's my topic is my feedback regarding these classes. So, my feedback regarding these classes is very good. From learning from the basics to advanced was a very good lineup, and that made me able to speak English. And rather than just iterating the facts, I came to know that there is another method, that is by understanding anything and then recalling that through our mind. And I also came to know that our mind is magnetic. As much as we would feed it, it would take up all those things, but the only thing that we need is proper guidance and proper way of doing that thing. And the best thing I found was that there is no iteration. If there would be iteration, there would be nothing like English and any subject. And to learn anything, we would have to leave iteration. And it is the worst thing of our school and education system, as there is mostly the iteration system. And because it is from very ancient time, not from very ancient time, but after the Britishers. And because of these, the minds of the youth are not getting that much developed as much they may, and they are not reaching up to their capability. And also by these classes, I came to know that there is also English, and that language can be learned by another method, just not by being in the environment of that language we may learn these. But earlier I would think that schools would have taught me English, and I would be able to speak English. But I was wrong, because we know that in our schools there is just iteration, and on the name of grammar there is nothing. Because on the name of grammar, they only make us iterate the facts, and they don't even tell us what the things mean. Just like we would have faced that we used to iterate noun, pronoun, verb, etc., which had no sense. But after these classes, I have got to know those all things without iteration, and I have improved a lot by these classes. That's it, sir. Very good. Yes. Come on, Rakshit. Yes, And if sir. you have learned Hello, everyone. anything else than English, you can describe it also. Yes, come on, Rakshit. Yes, sir. Hello, everyone. My name is Rakshit Maurya, and today I am giving my feedback regarding these classes. How I improved in these classes, or by the help of these classes. So, I will start with this, that whenever I think that if I will not take these class, if I had not taken these classes, what would have happened to me? So this thought many times come to me, and I thought that I would be very bad in English. But it is a good thing that I took these classes, and now I am at good position in English, because I started to take these classes from to 2021. And at that time I was very poor in English. I don't know about English. I can only read English, and whenever would be exams in schools, I would iterate the answers and would write in the examinations, because at that time I was in first to
to 6th classes. And we know that our education system is like that. There is no at the point of these classes from first to sixth, there is no point of understanding. There is only rote learning and rote learning. So this is a catch that of our education system, that there is no way to understand anything. Teachers tell students to iterate the things, and students without knowing the thing iterate that thing. That is very bad. And the point of view of children get restricted to a point that if they do not get enough information about the thing, they can't think about the thing. And like we know that the person who develops himself by the rote learning cannot speak about any topic without any script or without without practicing it. But instead of rote learning, if the person is told to understand, he can think broadly and can think of other topics. Very good. So coming to my feedback, I learned this thing from Rajesh ji sir, that there is no benefit of rote learning. There is only harmful effects of this thing. So instead of rote learning, we should understand the context of the thing, so that we can learn the thing and can learn broadly about the thing. Like as Harsha told, that we did rote learning about what is noun, what is pronoun. We learned definitions of these things, whether there is work of it or not. We wrote it, and I was thinking that this is not good. And now I understand that these things are not of iteration. These are of things that are understood. And sir, and many times sir tell this, that this classes is not only for English. These classes are also for character development. I fully agree with this thing, that I developed myself with these classes, because not only sir taught us about English or teaches us about English, but also sir gives many moral lessons, that how to develop ourselves in a right way, and like how to behave with others, what is the importance of time, that everyone should come on time. And there are many lessons that sir teaches us in these classes. And also sir gives knowledge about the world many times, without any routine. Sir starts to tell about something that is not related to English, and gives a vast knowledge of the thing to us. That is very important. And the method of teaching of sir, that teach by that method sir taught me English, is very good, because anyone who do not know about English can learn English by the method of sir, because sir teaches English from from the level of zero to the advanced level, with a unique and different method. And anyone who do hard work with our sir can learn English very effectively, and will never get any problem in learning English. So at last, I want to say that I improved myself in English, not only in speaking English, but also in writing English, in listening English, and comprehending English, and in translating, and also in reading. In all the aspects of English, I improved myself by these classes. And so that's it, sir. Shabash.
वेरी गुड यार, मजा आ जाता है तुम लोगों को सुनता हूँ जब मैं। वेरी गुड, शाबाश। कमल लक्ष्मी। Yes, sir. My name is Lakshmi Gujjar. Today, my topic is my feedback regarding these classes, and I am telling about it. And I have totally improved in English subject because of sir, because I learned many things like how to speak, how to read essay, paragraph, etc. And iteration is a worst thing in the world. And all the teacher may, some teachers tell to iterate this thing to the student, so the student iterate all these things, and they don't use their mind and their thinking capacity, and they all time iterate many things. That's why they can't progress their life. And in instead of iteration, we should adopt how to increase our thinking capacity, and how to how to how to forward in the world. And 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 we should use our mind in every situation, because iteration is not not useful for us. And i i increase I increase my thinking capacity. And 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 sir tell us what is the important of time. And sir not only tell us English, but also tell us about India, and about our culture, and how to behavior to others, and how, how to respect to elders, brothers and sisters, etc. And and English is not only English is easy for everyone according to me, but someone but the teachers give give them to iterate all the things. Some teacher don't know how to increase the student capacity to learn English. And शाबाश। they they all time iterate the student to do it. And they all time don't use their mind. And and They we never should. use their mind. Yes, They sir. never They use never their use. mind. हाँ। बोल Yes, बोल sir. बोल। They never use their mind. And from these classes, I I These have. classes या this class या these classes, ध्यान रखो सिंगुलर प्लूरल का मैंने कहा था ना। Yes, sir. दिस तो सिंगुलर From हो गया, these क्लासेस प्लूरल हो गया। थोड़ा सा फोकस करो बेटा। from this class I learned many things. And and nowadays I am able to speak anything in English. And I can speak ev- everywhere, anywhere. And I can and I can learn many things from Rajesh ji sir, because they tell us देख क्यों आएगा, ही नहीं the. आएगा। Yes, sir. क्या हो रहा है तेरे को? He. Sir, पता नहीं sir. तो He पता tell नहीं यार, us. सो के उठी है अभी, मुंह तो धो ली थी। चल बोल। नहीं sir, he बोल। tell us the value of time, and many things. And we should and we should get many good habits from Rajesh ji sir. That's it, sir. नींद आ रही है तेरे को? सो जा। नहीं सर. ओके, अब शुरू करो अपना स्पीच।
Yes, sir. Hello, everyone. Today my topic name is my feedback, and my before I joined the class, I was very weak in English. शाबाश, ध्यान से धीरे धीरे एक एक शब्द को ध्यान से बोलना है बेटा, बोलो. Yes, sir. After I joined the class, I know many things in 1 month. I knew टेंस का ध्यान रखो. I knew many things in 1 month. हाँ, शाबाश, धीरे धीरे बोलो, तसल्ली से बोलो, एक एक सेंटेंस को अच्छे से बना बना के. Like model and other things. हाँ. And after 1 year I am able to speak any topic. हाँ बेटा, धीरे धीरे तसल्ली से बोलो, ऐसे ही बोलो बस. हाँ. And in my school, ma'am teach about chapter, and I do not understand, but in this class I understand all things. वेरी गुड, वेरी गुड. ऐसे बोलो धीरे धीरे तसल्ली से. शाबाश, बहुत अच्छा बोल रहे हो. वेरी गुड. एक एक चीज पे ध्यान रखते हो बोलो. हाँ. Because sir teach us lesson and other things. शाबाश, 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 शाबाश. छोटे छोटे सेंटेंस बना बना के बोलते रहो, ऐसे धीरे धीरे आएगा. हाँ. And I joined the class on 24 April 2025. शाबाश, शाबाश. ऐसे तसल्ली से बिल्कुल धीरे धीरे. वेरी गुड बेटा. हाँ. And now I was very. I am. नाउ बोला ना उधर. Now I am very good in English. शाबाश, शाबाश, That's it, sir. शाबाश. ऐसे बोला कर धीरे धीरे तसल्ली से, एक एक चीज का ध्यान कर करके, फिर देख बिल्कुल ठीक होने लग जाएगा. समझ गया ना बेटा? हाँ. अनुज नहीं है, 4% बैटरी है. कर क्या रहा था इतनी देर से फिर भाई? पता नहीं था क्लास है आज. खुशी आ जा बेटा. खुशी, खुशी का ही है Yes, ना sir. नंबर? हाँ, विपिन हाँ, का हो sir. गया. खुशी आ जा बेटा. अच्छे से बोलना बेटा. अच्छे से बोलती है अब तू. बस कॉन्फिडेंस के साथ बोलना बेटा, है ना? बोल बेटा. Yes, sir. Hello and good evening to all of you. My name is Kush Gujar. I am telling about my feedback regarding these classes. हाँ. Now, I have been joining these classes since September 2024. I have been taking. हाँ, कोई बात नहीं, बोलो. हाँ. I think I have completed 1.5 year. हाँ बेटा. I thought. सर हिंदी यूज कर सकते हो? करना बेटा, तो मैंने पहले ही कह दिया तुमको. बस फीडबैक दो अपना. जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरी 1.5-2 साल As long काफी as it seems to me. कोई बात नहीं, बोल हिंदी में बोल. तू कोई बात नहीं, बोल हिंदी में बोल बेटा. कोई बात नहीं, अपने कौन सा वीडियो बेचना है अपने को. बोल तो. जहाँ तक मुझे लगता है 2-3 साल, ये 1.5-2 साल मेरे काफी अच्छे रहे हैं. बचपन में तो मतलब 8वीं या 9वीं क्लासों में मुझे लगता था अगर ये सर इंग्लिश वाले सर टेस्ट लेंगे और ये डंडे मारेंगे, तभी मैं रटा करती थी. एनीवेज इंग्लिश की कॉपी, इंग्लिश की किताब में कभी नहीं खोलती थी. ओनली काम पूरा करती थी कि होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए. तो काम कैसे करते थे? देख देख के, कॉपी ले लेके. हाँ, पड़ोसी हाँ, ले भाई, कल हमेशा बेटे से. मेरी तरफ से कॉपी दे दे यार. मैंने भी तो दी थी तेरे को एसएसटी की. अच्छा, आगे बोलो. हाँ. पासबुक में से क्या करते थे? पासबुक में सभी से बच्चों के पास पासबुक. अच्छा, ओके. हाँ. तो एक 7th क्लास में एक टीचर आई थी जो बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो मैं वहां पर रटा करती थी. जैसे जहां वाज आएगा तो वहां, जहां इज आएगा तो वहां इज, जहां
जो आ रहा है वैसे रटा करती थी। मजा आता नंबर अच्छे आते थे रटने से। हाँ रटने से सिर्फ नंबर अच्छे आते थे, लेकिन कई जगह वाज भूल जाती थी, कई जगह दैट भूल जाती थी। और ये दैट वाज मुझे ऐसे लगता था कि जहाँ दैट है वहां पे दैट ही लगाना है, जहाँ वाज है वहां वाज अच्छा, लगाना है। कभी किसी ने सोचा ही नहीं, तुम्हारे घर वालों ने, तुमने, कि ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, मतलब कभी कोई थॉट ही नहीं आया दिमाग में? सर हमारे टीचर ही पासबुक यूज करते थे। तू चुप रह, बात करने दे मेरे को खुशी से। हाँ तू बोल खुशी। मैं हाँ 8वीं तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ी थी। प्राइवेट तो स्कूल में पढ़ी थी? हाँ, ओ प्राइवेट स्कूल के 8वीं बच्चे हो तक तुम, वेरी गुड। और 8वीं तक प्राइवेट स्कूल थी मेरी, हाँ वो भी महावीर नगर में अनिल बाल भारती स्कूल। अच्छा तो वहां पे सिर्फ 7वीं क्लास में बहुत अच्छी टीचर आई थी जो बहुत स्ट्रिक्ट थी, वो सिखाना चाहती थी, लेकिन सभी बच्चे रटते थे। 15-20 बच्चों में से भी सिर्फ है ना 3 बच्चे होंगे जिसके ठीक ठाक अच्छे नंबर आते थे, या उनको समझ में आता था कि इसके मतलब इसका मतलब ये है, वाज का मतलब ये है। बाकी हम्म सभी बच्चों को समझ में नहीं आता था, मुझे जहां तक हम्म मुझे पता है। वो तीनों बच्चे मतलब ट्यूशन के थे, कोई घर पे अलग ट्यूशन था, ऐसे थे। हम्म तो मैं वहां 7वीं क्लास में रटी। 8वीं क्लास में मैंने अच्छी ग्रेड ए ग्रेड पास की, मुझे नहीं पता कैसे आ गई ए ग्रेड, इंग्लिश में आई है। हम्म। उसके लिए मेरी, और ये बात फिर टॉफी नवीं वॉफी में, खिलाती होगी तू तेरी टीचर को? नहीं ऐसी बात, बोर्ड था ना उस, अच्छा बोर्ड में आया था, हाँ 8वीं क्लास बोर्ड, ओके। उसके 9th से लेके 12th तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में थी दुर्गापुरा। वहां पे तो मतलब, वहां पे तो ऐसा था वहां पे कि टीचर ने कभी दर्शन नहीं दिए। दर्शन ही नहीं? 9वीं में नहीं दिए, 10वीं में नहीं दिए, हाँ 11वीं-12वीं में कोरोना आ गया था। हाँ तो 4 साल तो ऐसे था कि इंग्लिश में मैंने कुछ भी नहीं सीखा, वो 4 साल में कुछ हाँ भी। हाँ। इंग्लिश के टीचर थे जो हफ्ते में, महीने में 2 या 3 बार आते थे। हम्म पता नहीं उनको कौन कौन से काम देती थी प्रिंसिपल मैम कि वो हम्म कभी क्लास अटेंड नहीं ले पाते थे। हम्म तो मेरे 4 साल ऐसे गए। और रही बात फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक ही बार इंग्लिश आती है, पास हो जाओ तो ठीक है, वरना फिर तीनों साल चलती रहती है, हम्म तुम हम्म। कभी भी पास करो। हाँ तो फर्स्ट ईयर में मैंने सिर्फ ग्रामर इतनी पढ़ी, मुझे मतलब चैप्टर तो इतने समझ में आते नहीं, ग्रामर पढ़ती थी यूट्यूब से, जो भी होता था। तो यूट्यूब से मैंने कैसे भी करके मैंने 44 नंबर से पास हो गई थी मैं ओके, इंग्लिश। साल बच गया तेरा, मतलब वो बच हाँ गया तेरा। वैसा, हाँ हम्म सारे सब्जेक्ट पास कर लिए थे मैंने फर्स्ट ईयर में। उसके बाद मैंने कभी इंग्लिश पढ़ी नहीं। लास्ट में मैं 3rd ईयर में मैंने सर की क्लासें ली, जो इतने सालों से नहीं हो, 1.5 साल में इतना इम्प्रूव, मतलब इंग्लिश ही नहीं, मैंने बहुत सारी हैबिट्स, जैसे डिसिप्लिन, जैसे मतलब अपने देश के प्रति मान सम्मान, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है। जिस हिसाब से आपने स्टोरी सुनाई है, वैसी उस टाइप, उनसे काफी कुछ सीखा है। हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट मी? फ्रॉम माई सिस्टर एंड इन 24। ओके ठीक है, कंटिन्यू करो। एंड मैंने तो मतलब किसी ने मुझे बताई थी कि इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, वो भी व्हाट्सएप पे। जो मुझसे शायद फर्स्ट 2-3 साल छोटा लड़का था, लक्ष्मी से सिर्फ एक एज बड़ा। अच्छा, तो उसने किसी बताया लक्ष्मी था, ने नहीं बताया तुमको, किसी और ने बताया था तुम्हारे को? हाँ उन्होंने मतलब उनके स्टेटस पे देखा कि ऐसे क्लासेस स्टार्ट हो रही है, हम्म और शायद उसमें एक्सपीरियंस भी लिखा हुआ था आपका, और काफी कुछ लिखा हुआ था। हम्म और फिर लक्ष्मी ने बोला कि मैंने इंग्लिश लिटरेचर ले लिया, मैं कैसे करूंगी इसको, ये वो काफी कुछ। फिर लेकिन ज्वाइनिंग कर ली, उसके बाद फिर मैंने ली है 6 महीने बाद, हम्म 6-7 महीने बाद। तो जब से मेरा काफी इम्प्रूवमेंट रहा, हम्म मतलब इंग्लिश में नहीं, मेरे अदर सब्जेक्ट भी काफी अच्छे हो गए, मतलब एक बार मेहनत पकड़ने से, एक बार समझने से चीजों को, जो इतने सालों से समझी नहीं, सिर्फ पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे, पता नहीं क्या पढ़े जा रहे, लेकिन पढ़े जा रहे। हम्म और मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया, उसके बाद में मुझे चीजें समझ में आने लगी है। हम्म। अगर बचपन से आती तो फिर काफी अच्छा था। तो फिर भी बचपन। मैं बहुत हम्म ग्रेटफुल हूँ, हम्म। अभी भी काफी समय है अगर। दैट्स इट आई एम सर। आल्सो हैप्पी एट योर परफॉर्मेंस, बिकॉज मुझे पता है मैं कहाँ से तुमको लेके आया हूँ ना, तो मुझसे ज्यादा तो शायद किसी को, तुमको भी खुशी नहीं हो सकती होगी। तुम्हारा तो भाई एक, तुमको एक चीज मिली है, नो डाउट, बट जो खुशी मेरे को हो सकती है ना, द प्लेजर आई कैन फील, यू कांट। तो मैं कुम्हार और तुम मिट्टी, और मैं सुनार और तुम सोना। वेरी गुड, शाबाश।
सो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी बोल सकते हो, आज कोई दिक्कत नहीं, कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है। ओहो, मैडम का नाम है, आइए सिमरन मैडम। हाँ सर। आ जाओ। लक्ष्मी तेरे को भी बोलना है क्या कुछ? सर ये मेरे को बोली थी कि तू हिंदी में बोलना, मेरे से तो नहीं बोला गया। फिर मैं सोची, सर मैं तो नहीं बोलूं, मेरे तो आंसू आ रहे हैं। आ रहे हैं आंसू? आंसू क्यों आ रहे हैं तेरे? रो क्यों रही है तू? है बेटा? नहीं सर, मुझसे भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट मतलब इसके अंदर हुआ है। इधर देखना, मतलब मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख। आएंगे। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? है? अरे इधर तो देख, क्या हुआ बेटा? रोना क्यों आ रहा है? भाई पता नहीं सर, इसके तो आंसू नहीं रुक रहे। नहीं, खुशी से रो रही है कि दुख से रो रही है? जी से रो रही होगी। कहीं इसलिए रो रही हो? कहाँ फंस गई मैं? एक तो नहीं ये सर नहीं। तो क्यों रो रही है फिर? खुश है ना? कहते ना कि आंसुओं का भी कोई भरोसा नहीं होता है, दुख में भी निकल जाते हैं और खुशी में भी निकल पड़ते हैं। यस सर। बट आई एम ऑल्सो हैप्पी बेटा, तेरे परफॉर्मेंस पे, तेरे रिजल्ट पे मुझे भी बहुत, आई एम वेरी हैप्पी। तो कोई बात नहीं बेटा, है ना? वेरी गुड, हाँ शाबाश। हाँ भाई आजा। ये तो अभी नींद आ रही है, तो सो गई फिर बैठी बैठी है। और सिमरन देख लो। हाँ सर। कहाँ है? तो सो रही है तू बैठी नहीं बैठी? सोई। हाँ आजा, नहीं बोल सोई सर। बोल बेटा बोल। सिर पे कुछ बर्फ बर्फ रखवाऊं तेरे? चल बोल। तेरा नेट सही नहीं आ रहा बेटा, कनेक्टिविटी सही नहीं है, कल वाली जगह पे जाओ। नहीं जा हाँ सकती सर। नहीं जा सकती तो बोल। सर हाँ नहीं, तो चल बोल। क्योंकि सर यहाँ पे हूँ घर पे, तो ये घर यहाँ पे हमारे घर खेतों पे है, तो यहाँ पे नेट थोड़ा रुक रुक तो कल के कहाँ आता थी है। तू? वेयर वर यू यस्टरडे? कल मैं हैं? दादी के घर। ओके ओके, नाउ चल कम ऑन स्पीक। सर सर आवाज आ रही है ओ अब? आ रही है बेटा, माइक तेरा कैमरा बंद रखना बस, जब भी आएगा बस बोल बेटा। हो सर। अ, हाँ सर, कैन आई स्पीक इन हिंदी? यस व्हाई नॉट, यू आर मोस्ट वेलकम, कम ऑन। कैमरा भी चालू ओके करके देख सर। रहा है एक बार। हाँ आप बोल। अब सो बंद कर ले, बंद कर ले, बंद कर ले कैमरा। हाँ बोल। सर सर मैं आज ना सर सब बता रहे कि अपना फीडबैक बता रहे इंग्लिश के बारे में। मैं भी अपना फीडबैक बताती हूँ कि मैंने इंग्लिश इसलिए स्टार्ट नहीं की कि भाई मेरी इंग्लिश काफी अच्छी है तो मैं इसे और अच्छा बनाऊंगी। इसका तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैंने इसलिए इंग्लिश स्टार्ट की है क्योंकि मेरी इंग्लिश सच में बहुत गंदी थी। यहाँ तक कि जब मैं 10th में थी तो 10th में और सब्जेक्ट में काफी अच्छे नंबर आए। एक बार और कैमरा इंग्लिश चालू करके देखना, जरा ट्राई 48। करना, कैमरा चालू करके देखना बेटा एक बार। सर अब? हाँ बोल। ये सर 10th में 48 थी और मैथ में मेरे में बंद कर ले बेटा, बंद कर ले, बंद ही कर ले कैमरा, तो बंद ही कर ले बेटा, कैमरा बंद कर ले बेटा। हाँ आप बोल। हाँ मैंने पता ना सर कि यहाँ पे नेटवर्क इशू है। हाँ कोई बात नहीं, बोल बेटा। इसलिए हाँ बोल बोल बोल, आ जाएगी बस। हाँ सर। और 12th में भी मेरे साथ यही हुआ कि 12th में मेरे 68 आए, सिर्फ 68, और अदर सब्जेक्ट में 90 से ऊपर, आउट ऑफ 100। तो मैं तो एकदम सदमे में चली गई। सदमे में क्यों? हाँ मतलब सर। इतने ज्यादा आ गए या कम आए? कैसे सदमे में जाने का क्या रीजन था? सर 68 आए, सिर्फ 68, और सब्जेक्ट में किसी में 98, किसी में 95, किसी में 90। अरे 90 से नीचे तो थे ही नहीं, सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के। ये क्या हुआ मेरे साथ? फिर मैं सोची क्या हुआ। फिर मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज में गई, तो कॉलेज में मतलब मैंने तो सोचा
था कि भाई हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में पढ़ाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं। सब उठाए तो किताब भी उठाए तो उसकी इंग्लिश की। अब मैं जो भी सुनूं सब परफेक्ट। अब क्या करूं? मेरा कोई ये नहीं था कि मैं सीखूंगी इंग्लिश से क्लासेस कभी भी, क्योंकि मैंने सोचा था कि हाँ काम तो चल जाएगा मेरा। पर पार ही ना पड़ी कॉलेज में तो फिर मुझे लेनी पड़ी क्लासेस। पहले तो मतलब जो भी चीजें ना तो मैं ऐसा करती थी, जैसे कि ये इंडियन हिंदी है ना उसको इंग्लिश में भी वैसे करती थी, इंडियन हिंदी लिख के, मतलब अच्छा, हिंदी इंग्लिश। को भी वैसे जैसे ओके। टाइप करती हूँ। ओ इंग्लिश, इंग्लिश जिसको कहते हैं अपन इंग्लिश, इसको इंग्लिश कहते हैं बेटा अपन। हाँ हाँ सर, हाँ वो यूज करती थी मैं। हाँ। पर कॉलेज में किससे भी नहीं कि बैक लग जाएगी। अब क्या करूं? फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी। फिर मैंने प्रिया को देखा। प्रिया को नहीं देखा, मैंने प्रिया का एक वीडियो देखा जिसमें वो कॉलेज में इंग्लिश में एकदम, अरे एकदम सदा सूट ऐसे बोल रही धड़ाधड़ की। भाई कौन बोल रहा था? प्रिया? हाँ। अच्छा। फिर मैंने उससे पूछा यार तू इतनी इंग्लिश कैसे बोलती है, और वो क्या समझ में भी आती है? मैं हाँ। तो फिर उसने कहा कि भाई ऐसे सर पढ़ाते हैं तो तू भी ले लेना है क्लासेस। भाई ठीक है। फिर मैंने भी स्टार्ट कर दी क्लासेस। तो सही में सर तब मेरे को रियलाइज हुआ कि खास में ये 6 क्लास से ले लेती तो कितना अच्छा होता। तो मेरी इंग्लिश मतलब इस तरह की नहीं होती। और मैंने एक चीज देखी कि आप टेस्ट लेते हो, और जो हमारी स्कूल ये स्कूल में ना सर पढ़ाते तो है पर टाइम टू टाइम टेस्ट नहीं लेते। तो इससे क्या है कि मतलब जो भी पढ़ा है वो सब मतलब रटने में जाता है, और रटते हैं वो भी फिर भूल भाल जाते हैं, टेस्ट नहीं लेते। तो क्या बोलते हैं, फिर मैंने यहाँ पे सीखा कि भाई हाँ ऐसे ऐसे सेंटेंस बनाते हैं, ऐसे ऐसे इनको ऐसे करते हैं, फ्रेम करते हैं। फिर धीरे धीरे मेरी इंग्लिश पकड़ में आई, मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा। अभी भी मेरे वर्ब वगैरह वैसी की वैसी ही है, पर मैं कोशिश करती हूँ भाई इनको सुधारूं। और मैं न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ती हूँ। हाँ, और मतलब मेरे भाई की इनकी ये किताबें इनको देखती हूँ, क्योंकि इनमें काफी इजी लैंग्वेज में है। हमारे में तो काफी ज्यादा हाई उसका है। हाँ बेटा। तो फिर मैंने हाँ, तो अभी तो मैं मतलब इनको ऐसे पढ़ रही हूँ है ना। पर सच में सर हमारा इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है सच में बहुत बहुत खराब है सही में। क्योंकि हमारे मतलब सिटी में सब बच्चे स्कूल पे कूदा बस इतना आता है, कुछ नहीं आता इनको। मतलब स्वर कैसे बना नहीं आता सही में। सो अगर हमारा सिस्टम सही हो ना पढ़ा तो बेटा आवाज गई। गवर्नमेंट टीचर्स दर्शन ही नहीं देते हैं। अभी क्या आ रही है क्या सर? बेटा आवाज बीच बीच में गायब हो जाती है, कभी कभी तो बिल्कुल सही आती है। बोलना जरा। आ रही है क्या? हाँ आ रही है, बोल। हाँ सर। तो मैं कहा सर आप सही में क्या बेटा? क्या सुनाई नहीं दे रहा बेटा। सर अब आवाज आ रही है क्या? अब आ रही है बेटा, अब बोल बेटा। ठीक है सर। हाँ सर, आप जिस तरह से पढ़ाते हो ना उस तरह से अगर सब पढ़ाने लग जाए ना सर है ना, तो सही में मतलब हर बच्चा सीख जाए भाई कैसे इसको मतलब सेंटेंस कैसे बनाए, कैसे पढ़े इंग्लिश को, कैसे ट्रांसलेट करे। क्योंकि जो अंग्रेज लोग आए थे ना यहाँ पे, तब से उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया है अपने इंडिया में। जो सब लोग जो इंग्लिश जानता है उसको प्रायोरिटी देते हैं, जो
सही है। हाँ हाँ सर, मैंने देखा है सिटी में हम्म कि जो इंग्लिश जानता है, जो इंग्लिश में बात कर लेता है और जो पढ़ लेता है उसको, हाँ भाई ये तो होशियार है पढ़ने में, भले से उसको कुछ भी नहीं आता हो, पर हाँ इंग्लिश आती है तो हाँ भाई हम्म इसे तो आता है, सब आता है। और जो हिंदी में मतलब उसको सारे सब कुछ आता हो उसको ना, हम्म हिंदी में, हम्म अदर सब्जेक्ट में, हम्म तो वो मतलब वो बेचारा मतलब हिंदी में उसको इंग्लिश में वो बोलते रहेंगे, उसको समझ में ही नहीं आएगी क्या बोल हम्म रहे हैं, लिखा है पर हर एक बार भी इंग्लिश में लिखा होता है। और मतलब सब प्रायोरिटी इंग्लिश को देने लग गए, हिंदी साइड है हम्म सही में। और मतलब ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हम्म पर मतलब फिर मैंने सोचा कि अब दुनिया बदल गई है, बदल रही है, तो मुझे भी सीखना चाहिए इंग्लिश, हम्म क्योंकि अपने कहने से कुछ नहीं हो रहा। हम्म क्योंकि जो अदर कंट्रीज है बहुत आगे बढ़ चुकी है इंडिया से, हम्म और इंग्लैंड तो काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। हम्म सो इंटरनेशनल लैंग्वेज करती है इंग्लिश को, तो इंग्लिश तो सबको ही सीखनी चाहिए। हम्म सो इसलिए सर, और आप जिस तरह मतलब बेसिक से पढ़ाते हो ना, उस तरीके से अगर सब सीखने लग जाए ना, तो उनको ऐसे जैसे मेरे को दिक्कत आई है वैसे किसी को भी नहीं आए। हम्म, सही में। very और सर मतलब आप ऐसे ही पढ़ाते रही हो, और सबको मतलब जैसे आपने मेरे को छूट दी है, वैसे जिनको मतलब जिनको जरूरत हो ना, उनको सच में आप जैसे सर अगर मिल जाए ना, तो भगवान सच में है सर। सच में, सच कभी कभी लगता है कि भगवान होते हैं। होते हैं हाँ हाँ सर, मुझे तो कभी नहीं लगता कि भगवान होते थे पहले। अब तो हाँ थोड़ा थोड़ा लगता है होते हैं भगवान, हाँ देख के जो होता है दुनिया में। हाँ हाँ, और सबको ये एडवाइस एडवाइस दूंगी कि भाई पढ़ो, इंग्लिश को मत छोड़ो, क्योंकि नेशनल लैंग्वेज बन चुकी है अब। इसको हम्म छोड़ने का वही नहीं है, सवाल ही नहीं है। हम्म तो हमको पढ़ना भी चाहिए, और हमारी ऐसा नहीं है कि हिंदी को छोड़ दे, एक साइड रख दे, हम्म हिंदी को भी पढ़ना चाहिए साथ में, हम्म जबकि हिंदी को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। हम्म क्योंकि इसमें हम अपनी जो फीलिंग्स बता सकते हैं, वो अदर लैंग्वेज में वो बात नहीं है नहीं है जो राइट हिंदी में है। हम्म इसलिए हमेशा हमें अपने पहले खुद की मदद करनी चाहिए। अगर खुद की मदद करते हैं ना, तो भगवान भी अपनी मदद करता है सच में। इसलिए सब लैंग्वेज सीखो, पर इंग्लिश को जरूर सीखो। हम्म क्योंकि आगे जाके दिक्कत देती है बहुत सही में। हम्म इसलिए हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी तो दो, पर हम्म इंग्लिश को भी देनी चाहिए हमेशा। तो मतलब क्या बोलूं मैं आपको, कभी कभी। सो बस इतना ही कहूंगी सर मैं। खुश है ना तू दैट्स इट सर। अरे खुश हाँ है ना जी सर, मैं खुश हूँ। और हाँ अब तो तेरे को भी अंग्रेजी आ गई हाँ सर, आ तो गई है सर। अच्छा और मैं और ज्यादा इम्प्रूवमेंट ला रही हूँ, तो इसमें ला बेटा लाऊंगी भी सर। तू चलती रहे मेरे पास है ना हाँ वेरी ओके गुड सर। शाबाश बेटा खुश रहो बेटा खुश रहो बेटा थैंक यू। ओके बेटा आ जाओ काजल अन्वी तो बहुत ध्यान से सुन रही है आज है हाँ काजल आ जा बेटा Yes, sir. Hello everyone, my name is Kajal Meena. Today my topic is my feedback. हम्म So, you know that these classes are very important, and I have been taking these classes a lot of time, हम्म and uh, these classes are very helpful for me, हम्म and uh, and before taking these classes, I didn't know about English, and I was very weak in English, uh, and I didn't know about what is sentences, and
what is work from, etc. And what uh, I don't know about the grammar and nothing knew about the English, and very it is very good for me that I have been taking these classes, and I want to tell you that uh, these classes are very useful for me uh, in English, helpful for me in English language, but in my life, because I learn, I not only learn English language to you, sir. I learned many lessons like patience and of time and discipline and many other things. And I can't explain in words how I learned to you From you. and you From you. from you. हाँ बेटा. Yes, sir. And uh, before when I before met before meet you, sir, I didn't know how to explain our thoughts, and how to uh, how to work for for ourselves, and I learn a value of time, and what is and time is I learn what is the importance of time, and before and when I was studying in 10th class, and 10th class I didn't know about English, and uh, I thought that English is very hard language, and I think I thought that I hope I can learn English in my future, and I this is not for language, but I like English language in my childhood, and but I didn't know I didn't speak in English, and I thought that one day I I can speak in English, and I like this language. And I thought that this is a very hard language, and I never learn it, and uh, in the last I want to say that English is not a language. It is very important, because it is an international language, and today's world is give priority of this language, and this language is very important, and if we know English, we can feel confident, and we can speak for us, and we can take action for us, and because people think that he or she know English, so he's very intelligent, and he's very smart, and if he know English, he know everything, and this is not for all, but if we want to improve ourselves and our dreams, we should learn English, and it is very important, and that's it, sir. अरे वेरी गुड. शाबाश बेटा. बहुत बढ़िया. मजा आ जाता है यार. दिन बन जाता है दिन. हैं? Thank My you, sir. ecstasy knows Thank you, no sir. bound.
अरे यार सॉरी बेटा अन्नू, यार मैं तेरा नाम मिस कर गया, प्लीज बेटा सॉरी यार बेटा, यार तेरा नाम था पहले, योर नेम वाज बिफोर काजल, बट सॉरी यार बेटा, प्लीज यार। क्या हो गया इसको? अरे व्हाट हैपेंड टू यू? ये तो यहाँ थी, यहाँ कहाँ से आ गई ये? सर वो वाला काट दो। काट दूं? अरे उसको हटा दूंगा, काट दूंगा कैसे? काट कैसे दूं? पागल है क्या? काट दो हाँ सर वो हटा बेटा, दो। सॉरी यार बेटा, तेरा नाम मिस हो गया मेरे से यार बेटा, काजल से पहले योर नेम वाज बिफोर काजल, बट अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट नोटिस इट, सॉरी बेटा। सर मेरे को खुद को ही समझ में नहीं आ रहा था, मेरे नाम पे 29 मिनट्स लिखे हुए थे और दीदी के नाम पे 26, इसलिए सर मैंने कुछ बोला नहीं। 29 26 मतलब सर पता नहीं, मिनट्स अलग अलग लिखे हुए थे मेरे फोन 16, में, तो तुम्हारा मैंने इसलिए 16 कुछ पे था बोला। और इनका 19 पे था। हाँ सर पर वही वो क्या मेरे को स्क्रॉल समझ हो में गया ही था ना बेटा, वो स्क्रॉल हो गया था तो तुम्हारा नाम नजर नहीं आया मेरे को। पर मैंने बाद में जब सारे नाम देखे तो देन आई फाउंड दैट वेयर इज अनवी, because earlier I saw that there was your name in the mailbox बेटा, सॉरी, है ना, कई बार हो जाता है। आ जा बेटा, यस। So, hello everyone. Now I am sharing my thoughts on my feedback. As you know, as first मोबाइल when को I रख दो और बैठ जाओ, मोबाइल को हाथ में मत रखो, okay ऐसे sir, ऐसे बैठ जाओ आराम से, बिल्कुल। हाँ अब बोलो आराम से। I joined these classes in my summer vacations. हम्म, As you know that when I joined these classes, my father दिस says that क्लासेस नॉट दिस क्लासेस, दिस इज सिंगुलर, क्लासेज इज प्लूरल। थोड़ा सा फोकस करना है बेटा, कल बताया था ना मैंने, ऐसे थोड़ा सा फोकस करो, बोल बेटा। my father said that you should not join these classes, you should join bio classes, but I don't listen my father that time because I am पास्ट में आएगा ना अब ये सारा। sir नहीं सर, हाँ सर, सर मुझे सर सर मुझे बोला नहीं जा रहा, उकसुआ हिंदी में बोला जा रहा है नहीं सर, क्या वर्ड हिंदी में नहीं बोला जा रहा, उकसुआ है? सर बोला ही नहीं जा रहा क्या है तो मुझे पता चले क्या वर्ड है वो। सर, वही तो कैसे बोलना, तो मेरे को इंग्लिश में पता है उस वर्ड का मीनिंग ना सर, मुझसे हिंदी में बोला जा रहा। तो बोल, आगे छोड़ दे उसको, आगे बोल। योर फादर टोल्ड यू, योर फादर आस्क्ड यू टू ज्वाइन बायो क्लास बट यू डिडंट लिसन टू हिम एंड यू ज्वाइंड इंग्लिश क्लास। I don't listen him because डिडंट I लिसन हिम, मैंने कहा ना, पास्ट टेंस में आएगा ना। हाँ listen him because Sonal Didi appreciate me to join these classes, and she's do you know about mind wash? She had mind wash in my brain that you should join this classes, and I don't want to join bio classes then. That's why I joined these classes. That time Sonal Didi teach me tuition till 6 o'clock, sometimes more than 6 o'clock. So I didn't join the class on time, but I have leave the tuition because the Sonal Didi shifted her apartment on another place. another place, okay, yes. As you know that at the first I cannot make sentences could and not थोड़ा पास्ट टेंस could पे not, फोकस करो, कुछ बातें आप पास्ट की भी बता रहे हो ना, तो उसको पास्ट टेंस पे फोकस करो थोड़ा सा, बोलो अब ध्यान से बोलो थोड़ा। could not make sentences. सर मेरे को याद नहीं आ रहा वो आपने मेरे को कौन से टेंस के बारे में डांटा था, सिंपल पास्ट टेंस सर कौन से थे? कोई बात नहीं, मुझे भी ध्यान नहीं बेटा, इतना थोड़ी ध्यान रहता है कौन से टेंस के बारे में डाटा था। हाँ सर मैं सिंपल पास्ट टेंस लगा रही हूँ, लगा ले। सिंपल पास्ट टेंस and तबीयत ठीक नहीं है बेटा तेरी? हाँ
on simple past tense, and I am writing it in simple present tense. हम्म In simple present tense, um, and on and today's time I am thinking that success take times, like if you take one full glass of banana shake or mango shake, and then you on any tab, and then uh, आप सर मैं हिंदी में बोल रही हूँ बोलना बेटा, बोल बेटा, माइक तो चालू कर ले तेरा। ये कैमरा सर कैमरा सर ऑन ही नहीं हो रहा। अच्छा कोई बात नहीं, बोल तो। एंड देन आप उसको टैब के नीचे रख दोगे तो वो एकदम से तो साफ नहीं होगा, वो धीरे 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 जाके बिल्कुल साफ हो जाएगा। एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड माय 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 सर मैं क्या बोलूं, मेरी बात को, माय फीलिंग्स यू ना सर, आपको समझ में आ रही है ना? हाँ हाँ आ रहा है बेटा, तू बोल बेटा। हाँ my feelings that success takes time. At the last I want to say that you can do, you have the ability to do, but if one time you think that I can't, so you really can't. If you have mindset, yes, very good, shabash shabash, you have mindset of it. But I want to सीखने को क्या बोलूं सर? learn. I want to learn English. That's why I do not leave these classes. At the last, I want to say that I am not perfect. I don't know anything, but I can. So that's it. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। तबीयत खराब है तेरी, खांसी हो रही है, आइसक्रीम खाने लग गई होगी तू। हाँ सर, 3 दिन लगा। गंदी बात, अब मत खाना। ओके सर। हाँ बेटा, अभी थोड़ी मौसम आ गया, अब नहीं करना बेटा, है ना? और ये ओके एसी भी चला रही होगी। सर एसी तो नहीं चलाया सर, कूलर चला नहीं चलाना बेटा अभी, ये कोई भी ठंडे काम मत करो अभी। ओके देख सर। रहे हो ना, बैठ रहे होगे ना गले का काम, अभी नहीं बेटा। हाँ अभी थोड़ा समझदार बनो, ओके? ओके सर। हाँ बेटा, वेरी गुड चल रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं, चला जा, बोल अब, चालू हो जाओ। अंजलि देन मेरी बारी है। तेरा ही नंबर है अब। अनुज तो पार हो गया, बैटरी 4% है उसका। काजल का हो गया, अन्नू का हो गया, अब ये गौरव, और गौरव के बाद अंजलि, और फिर विपिन ने भी नाम लिखा हुआ है अपना। देखते हैं, आजा गौरव, चालू कर। हाँ सर, तो सर मैं हिंदी में बोलूंगा सर, समझ में आना चाहिए। बोल, आज छूट है सबको, बोलो, दिल खोल के बोलो। हाँ सर, मतलब मुंह खोल के बोलो, मुंह मतलब दिल खोल के और मुंह खोल के बोलो। सर सबसे पहले मतलब जब मतलब 3rd क्लास में मेरे को प्रिया दीदी इंग्लिश पढ़ाती थी, और उन्होंने भी इसी क्लास से सीखी थी। मेरे को पता नहीं था वो कौन सी क्लास लेती है, बस इतना पता था वो क्लास लेती है ना? तो फिर 2024 में था जब मम्मा को लगा कि हाँ मेरी भी इंग्लिश प्रिया दीदी जितनी हो, तो उन्होंने प्रिया दीदी से पूछा कि तू तो बैठ, रुक जाना एक जगह, रुक जाना एक जगह, भाई रुक जाना एक जगह, रुक जा एक जगह। और वो आप और वो आपके यस सर। तो जब प्रिया जी जयपुर में थी तब वो मुझे बताती भी थी कि ये राजेश जी सर हैं, उनकी मैं क्लास भी लेती हूँ, वो इतने अच्छे हैं। मतलब पहले वो डिवाइन कौन सी एकेडमी थी? हाँ वही थी वही थी फिर आरपीएससी, मेरा भी नाम भूल गया, राजस्थान। और फिर वो शिवालिक में आ गए, फिर वो शिवालिक में आ गए, फिर प्रिया भी पढ़ी थी वहां पे, प्रिया भी आ गई थी 11th-12th में, वहीं से पढ़ा था उसने। हाँ वो बताती थी कि आप ज्योग्राफी के टीचर हो वहाँ पे थे, मतलब
प्रिया जी बताती थी अच्छा कि आप कोई ज्योग्राफी पढ़ाते थे। आगे बोल आगे। नहीं बेटा, मैंने कभी इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं पढ़ाया। आई नेवर टॉट एनी अदर सब्जेक्ट देन इंग्लिश। यस कम ऑन। यस सर। तो फिर मैंने 2024 में क्लास ली। मेरी ओवरऑल भी ठीक थी इंग्लिश, क्योंकि प्रिया दीदी मुझे पहले से पढ़ा रही थी, वो भी इसी क्लास से सीख के ही पढ़ा रही थी मेरे को। तो फिर मैंने लेना स्टार्ट किया। तब मेरे को लगा, जब पहली बार सर ने मेरे को डांटा ना, तब मेरे को लगा कि नहीं यार, ये तो है ही नहीं मेरे लिए जगह। फिर मेरे को धीरे धीरे, पर ऐसे होप नहीं छोड़नी चाहिए। मैं तो छोड़ ही देता, पर करते रहे। तो फिर मैंने फिर कंटिन्यू किया, और अभी ठीक अच्छा है रिजल्ट, पर मेरे को और करना है। मैं सर ने जब पहली बार डांटा, उसके बाद तो बस बदमाशी के अलावा और किसी चीज के लिए नहीं डांटा। सुधर बस गया ना कभी फिर कभी परफॉर्मेंस लो हो जाता है। वो कोई बात नहीं है। वो भी किसी ऐसी चीज में डांटा होगा सर। जो तुम केयरलेसनेस कर रहे होगे या कुछ ऐसा ध्यान नहीं दे रहे होंगे, तब डांटा होगा। लोअर परफॉर्मेंस पे नहीं मैं डांटता हूँ कभी भी। और बस अभी और मतलब हम क्लास में बदमाशी भी करते हैं, मतलब जैसे कि मैं, अंजलि और विपिन क्लास के बीच में बातें करते हैं। और बोल 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 बोल। सुन ले विपिन। हाँ हाँ। फिर और क्या करते हो? और फिर जब गांव में हम आते थे, तब तो मैंने, जब ये अंजलि और विपिन पहली बार क्लास ले रहे थे, तब तो ये मतलब वो ट्रांसलेटर भी यूज करते थे कभी कभी। शाबाश। शुरू में ट्रांसलेटर यूज करते थे। शाबाश शाबाश शाबाश। रुक जा छोरी, मैं सर बताऊंगा अभी तेरे मेरे को। को मार पड़ेगी जब मैं और फिर है ना, और ये अंजलि मुझसे कभी कभी पूछती है कि बता दे। मैं बोलता हूँ मैं तो नहीं बताऊंगा। मतलब वो विपिन भी मुझसे कभी कभी मैसेज करके बोलता है कि भैया फर्स्ट का बता दो। मैंने बोला नो चीटिंग। बड़े भैया हो। और फिर ये एक तो हम सब जब गांव में होते तब एक ही फोन में क्लास लेते, और हम बस बोल के काट देते और फिर मस्ती करते रहते हैं। अच्छा कल और कहाँ पार फिर हो गए भी थे? कल ओवरऑल भी परफॉर्मेंस मेरा अच्छा है, और मैं हाँ बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस है। थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा है। और मैं प्रिया दीदी को भी थैंक यू करना चाहूंगा। उन्होंने मेरे को इंग्लिश की फाउंडेशन पढ़ाई थी लगभग, मतलब 10th लर्न करवाती थी। और मुझे ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम साइंस में होती है अभी भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे को साइंस समझ में ही नहीं आती, समझ में आती है पूरी मैप, पर हमारी मैम को चाहिए डिट्टो आंसर, एकदम कॉपी प्रिंट होना चाहिए। इटरेशन हो गया ना, वो इटरेशन वाली बात हो गई। फिर जब अभी 8th क्लास के बोर्ड में थे, तो फिर उन्होंने पेपर देखा, तो उन्हें लगा कि अब तो बीच में से भी क्वेश्चन देने पड़ेंगे। तो मेरे तो मौज हो गए, क्योंकि जो बाकी थे, जो मेरी क्लास के टॉपर्स, वो तो रट के आ जाते थे और एकदम डिट्टो के डिट्टो आंसर लिख देते थे। और अब 8th क्लास में जब हम जाएंगे तो शायद अलग सिलेबस आएगा और क्वेश्चन भी बीच में से आएंगे। तो अभी शायद से मेरे मौज हो गई साइंस में भी। और अभी बस इंग्लिश भी इम्प्रूव करनी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं छोड़ दूंगा ये क्लास आसानी से। दैट्स इट। थैंक यू सर। शाबाश बेटा। और फोकस करना है, थोड़ी हैंड राइटिंग पे ध्यान देना तुम्हारे को, है ना? हाँ अभी अच्छी करनी है और अच्छा करना है। ओके हाँ अंजलि आजा। छोरी तो मस्ती कर रही है अभी। बोल चल आजा फटाफट से, और बैठ के बोल ले ये। हाँ बोल। So, hello everyone, my name is Anjali Meena and today's topic is my feedback. तो मैं हिंदी में बोलना चाहते हो? हाँ। बोल बोल तो बोल। जब मैं क्लास ज्वाइन कर तो पहली बार मैंने गौरव को देखा था क्लास लेते उसपे, और गौरव ने देखा था दीदी को। तो पहले दीदी ने गौरव को करवाया, फिर मैंने किया 2025 में ना। तो मैं ज्वाइन की थी क्लास। पहले मैंने थोड़ा अच्छा किया, क्योंकि दीदी मेरे को पढ़ाती थी, बोलती थी
है ना, मैं पढ़ाती थी तो है ना, तो मैं कहीं भी जाता था। तो दीदी चली गई ना, जो शायद है ना, उस टाइम तो मेरा स्पीड थोड़ा डाउन चली गया। फिर मेरे को भैया पढ़ाता था, गौरव, मतलब गौरव मेरे को भैया पढ़ता था मतलब गौरव, भैया तो गलती से बोल दिया। हाँ फिर इंग्लिश है ना, फिर गौरव पढ़ाता था तो मेरा भी अच्छा जा रहा था। फिर अब मेरे को गौरव नहीं पढ़ाता है, क्योंकि बोलता है तूने क्लास ज्वाइन ही क्यों की अगर तेरे को मेरे से पूछना था। तो मेरे को ये हमेशा ऐसा बोलता रहता है। तो मैं ठीक, अब मेरे को आ गया है, और मेरे को ये, और कभी कभार मैं गलती करती हूँ तो आप मेरे को डांटते हो, और मेरे को वो अच्छी लगती है डांट। अच्छी लगती है। और छोरी, ये तो सारी डांट का ही मुझे बेकार कर दिया। मुझे तो लगता होगा कि अब तो कुछ और इलाज करना पड़ेगा तेरा। कह रहे डांट अच्छी लगती है। वाह यार, बोल आगे फिर। सर बोल। हाँ सर, मैं वापस आ चुकी हूँ। हाँ, और मेरा अच्छा परफॉर्मेंस आता है, और कभी कभार मैं गलती करती हूँ तो मेरे को, तो कभी मम्मी डांटती है साइड से, और कभी आप सामने से डांट देते हो। अब मेरे को कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, इसलिए मैं गलत जाते रहते हैं हर बार की तरह। पर अब मेरे को अच्छा जा रहा है। थैंक यू सर। तेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि क्लास छोड़ दे मेरी? ना है, ऐसा मोस्टली हर आदमी को लगता है स्टार्टिंग में कि क्लास छोड़ दी जाए, और पर 1-2% ही लोग छोड़ते हैं, बाकी मोस्टली छोड़ते नहीं है लोग। चलो आ जाओ। हाँ भैया, रोहित, हर्ष आ जाओ। हर्ष लास्ट में आए हैं भाई साहब, आ जाओ हर्ष। अभी भी नहीं है ही नहीं। हर्ष, रोहित नहीं है। ओके, बोलो। यस, फीडबैक है ना टॉपिक। हाँ, चल हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल। बोल 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 बोल, जैसे तेरे को बोलता हूँ। उस लैंग्वेज में बोलो। यस, इंग्लिश में बोल। बोल। यस सर। Hello, good evening everyone. My name is Harshad and today I'm going to tell you about my feedback. So, I joined these classes at least almost 4 years ago. At that moment, I was nothing in English, means that I could not speak, read, write, and understand English in any way. But now I am this much capable that I have watched at least 10 to 15 very big English shows which are completely in English, and I can understand everything and explain to other person also. And sometimes I watch them in 2x, means double speed. So the speed in which they speak also increases by double. And at that moment too, I can speak English. And this was all because of these classes. If I did not have joined these classes, then I wouldn't be able to speak English as frequent as I am right now. And I joined these classes on the suggestion of my father, as he met sir just 10 days before his transfer, and I just 1 month before shifted to Jaipur, and then from that till now I have been taking these classes, and I am in not any mood of giving up right now. And these classes not only taught me about English but also about moral duties, what should be the way of thinking, and what can we do to be a perfect citizen for the country. That's it. Okay, very good. Come on, Rohit. Shabash. Yes, sir. Hello, good evening everyone. My name is Vijay, but I'm going to tell you about my feedback. So I joined these classes exactly 4 years ago, and at that point of time, I was nothing in English. Means I don't know anything about English. I consider at sessions. At that time I always used to iterate the things, and I didn't know anything about grammar and the topics like tenses, reported speech, clauses. These were a type of nightmare for me. But now when I see back to now when I remember those days, I find that
I I not for any reason I used to scare, used to get afraid from that things. But now I think that anyone can learn English, but it depends on the guidance and proper support from the teacher. Like Mr. Rajesh Kumar Gupta sir has showed a lot of support to me. If you will see my previous my recordings when I just joined these classes, then you would say that how that I cannot learn English with this rate of learning, but this is possible of this sir only, and I got and I am getting so much flow because of practice and hard work. And every person who joins Raman online interactive classes, and after few years, if he is speaking slow fluently, and it does not mean it is a magic or any miracle. It is just a result of hard work and consistency. And I never quit these classes in all my journey, and I am attending all the classes regularly. This does not mean that these classes are essential for learning English, but it provides a guidance that makes it easier it easier for me to learn this language. And now also, for because of my board exams, I quit this class for 1 month, and now I will pursue joining this class. That's it, sir. वेरी गुड, शाबाश। गांव में हो दोनों भैया? सर देख लो सर, मेहनत करवा रही मम्मी। मेहनत करनी चाहिए, तो मेहनत करवा रही मम्मी। हाथ दुख गया सर इतनी देर से। हाँ तो बेटा सोचो जरा, माँ बाप भी कितनी मेहनत करते होंगे। ऐसे थोड़ी बड़े हो जाते हैं बच्चे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।